सर ह्या गेमला बोलतात संगीत खुर्ची. असंच होतं संगीत खुर्ची. बट मूविंग अहेड, इतने सारे बिगीज ऑन स्टेज, द इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स है. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम. लेट मी जस्ट सी. Imran, I think you should just break the ice and I think I'll break the ice without wasting too much time. First of all, good evening, everyone. Happy New Year, and thank you for coming here this evening on such a short notice. I know there's a lot of speculation on why we've called you here. I saw a couple of articles yesterday. Some of them were right, some of them were wrong. So I'll just put it out there right now without wasting anyone's time. We had a release date for our film Cheat India, which was planned on the 25th of Jan this month. And we have decided to prepone it to the 18th of Jan. There are a couple of reasons for that. There's one big reason that I'd want to share with you, and then we can pass on the mic and we can hear everyone here. We just felt our film is a very special film. It's a high concept film. It's a film that has never, it's a subject that has never been dabbled upon. The education system is a prevalent problem in our culture right now in our country. There's never been a film like this attempted, and we felt that we get an open week, we get enough breathing space, enough elbow room for our film to grow and sink into the consciousness of the audience, and we get the benefit of the second week also. So that's one of the reasons, and also we wanted to, and there was just a lot of noise on that weekend. We felt that we get a better open week. It's better for everyone. By the way, I've loved the promo of Thackeray. It's looking great, and I wish them all the very best. And now I will pass the mic on to... absolutely. I'm going to go ahead with the questions, but gentlemen, please have a seat. Request to please have a seat. Thank you very much. Imran, but one more question before we go ahead. I've just noticed something very peculiar about all your films. आपकी फिल्मों में always heat और cheat, ये दोनों चीजें होती हैं. I don't know. I'm just gifted here. Yeah. No, These are two things I've realized. Huh. Yeah, the heat and cheat. That has to be there. So I think it goes. But this film will also teach you a few things. So it Achha. says also teach in cheat. I think that deserves a big round of applause. Thank you, sir. Sanisha, thank you so much to make it Alat, and you've given us your time, sir. So first question ये है कि ज्यावेळी तुम्ही सर्वजण एकत्र येतात या मंचवर आणि एक डिसिजन आप लोग लेते हैं एक फिल्म के लिए. ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस बिजनेस तो होता ही है, लेकिन सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक एग्जाम्पल सेट होता है कि कैसे प्रोड्यूसर साथ में आते हैं और कैसे एक टॉपिक को रिजॉल्व किया जा सकता है जहां पर दोनों फिल्में एकदम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट ईटिंग इनटू एनीवन्स बिजनेस. तो मेरे लिए एंड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है. तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? तुमसे काय विचार आहे? सगळ्यात पहिले मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये सब जो आदित्य के साथ बैठकर आज का जो दिन है बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कि हम सब लोग एक साथ आए हैं. और मैं क्या बाला साहब ठाकरे जी का यही विचार था, जियो और जीने दो. हमेशा बाला साहब ने ये इंडस्ट्री के ऊपर सिर्फ प्रेम नहीं किया, प्रोटेक्ट किया है इंडस्ट्री को हमेशा. चाहे फिल्म हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे प्रोड्यूसर्स का कोई प्रॉब्लम्स हो या डायरेक्टर्स प्रॉब्लम हो, हमेशा लोग बाला साहब के यहाँ जाते थे और वहाँ सभी जो समस्या थी उसका हल होता था. तो मुझे लगता है ये बाला साहब की प्रेरणा है हम सबको कि हम एक साथ आकर आपस में बैठकर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं. बाला साहब इस देश के सबसे बड़े स्टार थे, सबको मालूम है. और ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टार नहीं थे, ये कलाकार थे. और कलाकार की भूमिका से अगर हम देखते हैं तो आज हमको एक साथ आकर ये निर्णय लेना ये उनकी इच्छा से हो रहा है. और आगे भी ये इंडस्ट्री एक रहे, एक दूसरे को हाथ पकड़कर सबको आगे लेके जाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा. और ठाकरे फिल्म तो ठीक है हमने बनाई है, जैसे आप सब लोग इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं. आपने मुझे कहा कि आई एम प्रोड्यूसर, आई एम एक्सीडेंटल प्रोड्यूसर. एक्सीडेंटल प्रोड्यूसर है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा. थैंक यू. Thank you very much. I think that answered our question, and
Very well put. I wouldn't want to comment further on that. Thank you very much, sir. My next question would go to the producers of the film. I mean, sir, आप लोगों ने ऐसे controversial topic को, एक बहुत ही serious topic को, when it comes to cheat India and educational system पर ऐसी सारी चीजें हुई हैं. सर, लेकिन ये सवाल नहीं है मेरा आपके लिए. मेरा कुछ और है. तो आपका एक ऐसा एक ट्रेंड चला है कि आप हमेशा फिल्मों को थोड़ा सा रीस्केड्यूल करते हैं. बीट आशिकी, बीट तुम्हारी सुलू, बीट सोनू की टीटू, ये आशिकी 2 टू बी प्रिसाइज, ये हिंदी मीडियम फॉर दैट मैटर, ये हमेशा से चलता रहा है और फिर उसके बाद तो धमाका ही हो जाता है बॉक्स ऑफिस पर. ये एक कुछ रिचुअल है, कुछ ऐसा होता है क्या सर? एक्चुअली ऐसा कोई रिचुअल नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उससे मुझे भी एक रिकलेक्शन हो रही है कि तीनों फिल्में जो इनके आपने नाम लिए हैं सर, रिकलेक्शन और उसके बाद कलेक्शन सर बहुत भारी होता है. All 3 films are super hit films, so I'm hoping same for this film. See, while preponing Cheat India, one, we definitely had a lot of respect for Balasaheb Thackeray's film, which is coming and it has a great promo, बहुत अच्छा promo है. एक रीज़न ऑब्वियसली वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट रीज़न हमेशा रहता है, बट फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू कोई ईगो हमें रखनी नहीं चाहिए. ये फिल्म हमने जब हिंदी मीडियम भी शिफ्ट की थी और आशिकी भी प्रीपोन की थी क्योंकि एक फिल्म उसके सामने आ रही थी, तो वो तो हमने 2 वीक प्रीपोन की थी और उसमें हमारी विंडो भी प्रमोशन की बहुत कम हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने की बिकॉज हम फिल्म को जस्टिस देना चाहते थे. एंड वी डिडंट वांट टू फाइट इन ईगो के नहीं हमें साथ में आना है, हम डेट चेंज नहीं करेंगे, डेट चेंज करेंगे तो बेइज्जती होगी, ये होगा, आपकी फिल्म से कॉन्फिडेंस जाएगा कि आपकी फिल्म वीक है इसलिए आप हो रहे हैं. वी हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन आवर फिल्म, दैट्स द रीज़न वी आर प्रीपोनिंग. नॉर्मली लोग पोस्टपोन करते हैं कि हम और प्रमोट कर लेंगे, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट बिकॉज इट्स अ कंटेंट ड्रिवन फिल्म एंड इट हैज़ दैट काइंड ऑफ थिंग एंड इट नीड्स इट्स ड्यू. तो उसको ड्यू देने के लिए यू नीडेड टू bring it on a clear week, and this is a clear week. My distributor Anil Thadani, he was also very confident about this week. So इसलिए हमने क्लैश को आप उसको रिस्पेक्ट सब चीज़ों को आप मिक्स करेंगे तो उस चीज़ से हमने एक फाइनल उस तरीके का कॉल लिया कि जो बिजनेस के लिए और सब चीज़ों के लिए करेक्ट हो. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बहुत चल रही हैं. एंड थैंक यू फॉर दैट आंसर बिकॉज इट यू पुट अ लॉट ऑफ लाइट. बहुत सारी जो स्पेकुलेशंस थी कि क्यों ऐसा, क्या, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई, लेकिन बहुत सारे और सवाल होंगे आगे. आई लाइक टू नाउ मूव ऑन टू तनुज. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हेन यू स्पीक अबाउट कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स. जब आप बात करते हैं कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स एंड दिस होल थिंग ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल कमिंग टुगेदर, एक डिसीजन लेना, एक टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड. When nobody eats into anyone's film, nobody eats into anyone's business. Films are coexisting independently, doing their business well, and such strong films. What is your perspective on the same? So firstly, Atul, Aditya, Imran, all of us, we've been great friends. We've been catching up. We actually met up a couple of months back, and we decided that come what may, we will not clash. You know, I think it's not just about being producers, it's also about being friends. There's also an element of brotherhood out here. And call it a coincidence or call it whatever else, we've come to that point, we've reached that stage, and we've decided not to clash. So I think that's wonderful, not only on a professional level, but even on a personal level. As far as content-driven films are concerned, I think this month has amply proven, or will amply prove hopefully, that whether it's realistic cinema, whether it's biopic cinema, whether it's cinema that's relatable, that's unconventional, is the cinema that's tracking, is the cinema that everybody wants to see. And be it Thackeray, which is a biopic on the most iconic luminary that the country has had, you know, or a subject like Cheat India, which is a very relatable, topical subject in today's environment. I think these are the kind of films that are working or have worked in the last couple of years. I think historic data has amply proven that. And we hope that history will continue repeating itself. Box office data for the past films will replicate in the form of box office data for these 2 films as well. And we're collectively extremely proud of the decision we've made. I think, as Bhushan mentioned, there should be no egos when it comes to business. Business is business. People can form their own conspiracy theories, people can come up with all sorts of unofficial versions, but the real version is what we're saying out here. And I hope that's the version that gets reported. Thank you. Thank you so much. Atul, my question to you is, we're talking about camaraderie, friendship, and the bonding that you all share. ये जो प्रोसेस था ये ऑर्गेनिक था कि थोड़ा ऑब्वियसली कॉन्टेम्पलेशन होता है इन बिग डिसीजंस पर वाज इट इजी, वाज इट डिफिकल्ट, हाउ वाज इट?
See, Adi and I have fights over football. We support opposite football teams. What's your team? What's his team? Man United, Arsenal. तो उस पे पंगे होते हैं non-stop. We also have lots of bonding over great food. Sir, but we scored 5-1 in the previous match against Cardiff City. Cardiff City is not a discussion. Please stop. so, so then we have lots of bonding over food. But what he's been very closely involved with education and what's been happening at Bombay University for a long time, and I've followed that. So actually, in the research to Cheat India, we've met a couple of times to actually pick his brains and discuss things that happen, malpractices, anomalies that happen in the education system, and he's been a great help long before we started shooting with the the writers, directors, Imi, everybody. We've been sitting and chatting with him and picking his brains over food or otherwise. So it's been one of those things where too old a friend to get into any kind of clash of any kind. So I think that should answer a lot of questions and speculations all around. Aditya, I'd like to come to you with this question. There is this film that is being made, a biopic on your grandfather. A person who's so well known. Everybody has spoken about him. Such a huge character. So much of respect. How does it feel, first of all? Have you seen the film? Have you seen parts of it? I've seen the trailer. I'm seeing the film very soon. Okay. But firstly, before starting off with that, as everyone's thanking each other, I think that's the formality on the stage. But I mean, it's almost like I'm a part of both films. Right. Thackeray, because of course Sanjay ji is producing it and making it, and I've seen Sanjay uncle. He's seen my grandfather very closely, and I'm hoping there's a part 3 very soon as well. But apart from that, as he said, for Cheat India as well, we were having a couple of dinners, and Tanuj and Atul and Imran, all of them have been very kind to make me a part of that whole process of thinking of what topic to pick up and all. And so both the films are very close to my heart. And I remember this conversation Atul and I had a couple of months ago when I didn't know really the release date of Thackeray as well. Everyone thought it'll be 23rd Jan. And that's when he had told me back then, I think in October, November, while shooting, saying, if it clashes, we'll prepone it, but we don't want to go on the same date as 23rd Jan as a part of respect, and really thankful for that. Of course, speaking of the biopic, it's larger than life. Everyone's seen the trailer, everyone's seen the impact, all my friends are talking about it, but of course, the man was also larger than life. And I think Nawaz has done a fantastic role getting as close as possible to, the man. So it's always a hard task, difficult task to make biopics on people who have been there around till recent times. And do justice to it. Yeah, to do justice to it, to come close to the character, to get that punch into the character, to make people feel about him. So I think that's a great thing that he. But I think this is done. absolutely awesome that all of you have come together and given this space for both the films to exist at the box office. So I guess what is going to happen is people are going to watch Cheat India, get frustrated with the system, and then watch Thackeray and become the angry young man that he was the next week. So I hope a lot of people are going to do that. Well, I think that's absolutely fabulous. Ladies and gentlemen, what we're going to do now is we're going to open questions. Members of the press and media, kindly take your name, aapka sawal, and let's pertain and stick to questions with regards to this press conference, please. Thank you very much. दोनों ही फिल्म आजकल वैसे भी जो भी फिल्म बनती है उस पर कोई ना कोई समुदाय खड़ा हो जाता है कि हमें दिक्कत है, परेशानी है, और फिर सेंसर बोर्ड भी उससे डील करता है कि फिल्म को किस तरीके से सर्टिफाइड किया जाए, कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाए, क्या कट किए जाए. आप दोनों प्रोड्यूसर हैं, आप पहली बार फिल्म कर रहे हैं, और भूषण जी आप तो लगातार सेंसर से डील करते रहते हैं. किस तरह की दिक्कतें होती हैं सेंसर बोर्ड के साथ और किस तरह का सपोर्ट मिळता है, और खासतौर से इस फिल्म के बारे में दोनों मला वाटतं कटकट सगळीकडे होतच असते, पण सगळ्यांनी एफर्ट जर चांगला घेतला तर कुठे होणार नाही. हा तेच कटकट. मेरा एक क्वेश्चन था प्रोड्यूसर्स ऑफ चीट इंडिया कि इतना आपका प्यार वाला डिस्कशन होने के बावजूद फिर भी मुझे क्वेश्चन पूछना है आपको कि क्या रिलीज डेट चेंज करने के पीछे शिवसेना का प्रेशर था? एकदम प्रेशर नहीं था. मैंने आपको पहली बार ही बोल दिया कि हम कोई प्रेशर में या कोई ईगो में हमने फिल्म शिफ्ट नहीं की है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग बिजनेस सेंस एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू बाला साहब ठाकरे.
ऑल्सो अगर प्रेशर होता या कोई थ्रेट होता तो हम लोग एक ही साथ स्टेज पे नहीं बैठे होते. वी आर ऑल सिटिंग हियर एज फ्रेंड्स, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड दैट देयर इज जिल्च प्रेशर. नो इनफैक्ट जब वो सब न्यूज़ आ रही थी तब हमारी सबकी बात हुई और मैंने अतुल को फ़ोन किया कि रे भाई कोई प्रेशर मत लो. एंड दैट्स द टाइम ही सेड नहीं मैं भी फ़ोन लगा रहा था बिकॉज हमें वैसे भी शिफ्ट करना था, तो आई वांटेड टू हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हेन कैन वी हैव इट. सो दैट वाज द कोइंसिडेंटल पार्ट ऑफ. इमरान जी एंड भूषण जी एंड आदित्य जी, आपसे तो डेफिनेटली जानना चाहूँगा क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं. फिल्म का नाम है चीट इंडिया एंड हमारे हिंदुस्तान में ढेरों सारे चीटर हैं एंड लेकिन रिसेंटली जिस तरह से विजय माल्या एंड नीरव मोदी ने मतलब बहुत सारा पैसा लेकर गायब हो गए, तो आप लोग को लगता है कि इन्हें इंडिया आना चाहिए? और आप लोग की तरफ से कुछ मैसेज, क्योंकि फिल्म का नाम है चीट इंडिया. आदित्य जी, आपसे भी जानना चाहूँगा एंड भूषण जी एंड इमरान जी. ये आई थिंक हम इसी के बारे में बात करेंगे जब अलग प्रेस मीट हो, तब प्रेस मीट इंडिया करेंगे, तब उस पर बात करेंगे. इमरान जी, क्योंकि फिल्म आपकी फिल्म का नाम है चीट इंडिया. अभी तो सिर्फ एक चीटर के बारे में जानता हूँ और वो है रॉकी राकेश सिंह, जो हमारे फिल्म का कैरेक्टर है. इसके बारे में बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा तो बाद में जाके बाहर डिस्कस कर सकते हैं, हाँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे. भूषण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबने जो बोला है मैं भी वही बोलूँगा. नहीं, शायद जैसे मैंने कहा पहले, आप पहले ये मूवी देखिए चीट इंडिया, फिर ठाकरे देखिए, फिर इंस्पायर हो कि आप भी कुछ कर सकेंगे. There's another film that is going to be released. Are you planning to speak to the other Not really. I producers mean, as well? we're friends. That's why Atul and I had the discussion, I think 2-3 months ago. And honestly, I wasn't a part of this production. We've been, going for shoots or going for recordings. But as such, we had decided this around September, October when their shoot was on. And that's when he had messaged me saying, we don't want to clash because as a part of respect towards my grandfather. And that's when this had happened. But honestly, it's not a bad thing, sharing, not sharing. Honestly, this is not about business. These are two very important films with great content, true stories, both at heart. So it's for a viewer experience any which ways. And because we are friends, this was all possible. Since Mr. Raut is a producer, can I just ask him as well? Do you think, sir, इस पूरी फिल्म, दूसरी जो फिल्म रिलीज हो रही है, क्या उसकी वजह से आपकी फिल्म पर असर पड़ेगा इसकी वजह से? सामने कौन सी फिल्म है उस बारे में हम रिलीज हो रही है, मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं है. ठाकरे ठाकरे है और मैं मानता हूँ कि ये नाम ही काफ़ी है. मना करने कौन सी फिल्म है क्या है, सबको अपना अपना फिल्म लगाने का पूरा अधिकार हक है और ना हमने किसी से बात की है ना करेंगे. लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, अतुल जी है, भूषण जी है, हाशमी जी है, कि मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि द ग्रेट लीडर इस देश के, उनके रिस्पेक्ट देने के लिए उसने जो निर्णय लिया है हम हमेशा उसे याद रखेंगे. संजय सर इथे वैदेही, संजय सर इकडे या तुमच्या बाजूला. बरं बोला. संजय सर, काही दिवसांपूर्वी शिवसैनिकांनी फेसबुकद्वारे सांगितलं होतं की ठाकरे या सिनेमा जेव्हा प्रदर्शित होणार ती शिवसेनेची भूमिका नव्हती, मी मागे सांगितलेलं आहे. शिवसेनेनं अशा प्रकारचा कुठलाही आदेश ना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी दिला किंवा युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं होतं. आता कोणी उत्स्फूर्तपणे काही करत असेल तर ती शिवसेनेची भूमिका असेल असं नाही. उत्स्फूर्तपणे लोकांना अनेक गोष्टी वाटू शकतात आणि त्याचा खुलासा आम्ही आधी केलेला आहे त्या संदर्भात. आणि आम्हाला मुळात ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरेंना त्यांच्या हयातीमध्ये कधीच कोणाचं आव्हान वाटलं नाही. राजकारण असेल, समाजकारण असेल, त्यांनी सर्व आव्हानं स्वीकारलेली आहेत. आणि हा बायोपिक ठाकरे बाळासाहेबांवरच आहे, कोणाचं चॅलेंज असण्याचं कारण नाही इथे. आणखीन एक प्रश्न आहे की आता वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे 2 सिनेमांच्या टीमनं समोरासमोर बसून जो आहे तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केलाय. स्क्रीन शेअरिंग संदर्भात देखील बोलणी झालेली आहेत. मात्र मराठी सिनेमा आणि हिंदी सिनेमा हे दोन्ही एकमेकांसमोर येताना बघायला मिळतात. स्क्रीनच्या निमित्तानं देखील वाद मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळतात. तर याच्यावर कशा पद्धतीने तोडगा काढता येईल? कारण मला असं वाटतं की भाई सिनेमाचा नाही, भाईला थिएटर्स मी आज येताना पूर्ण माहिती घेतलेली आहे. जेवढी थिएटर्स भाईला हवी होती तेवढी त्यांना स्क्रीन्स मिळालेले आहेत. एक लहानसा इश्यू असतात ते, त्याचा फार प्रोपगंडा करण्यात अर्थ नाही. भाई काशीनाथ घाणेकर, आपण पाहिलं काशीनाथ घाणेकरने क्रांती केलेली आहे गेल्या 25 दिवसामध्ये, 4 आठवड्यामध्ये. आणि भाईसुद्धा सर्वत्र आज झळकलेला आहे.
जगभरातून रिस्पॉन्स आहे. मी 3 दिवस दिल्लीत होतो, पार्लमेंटमध्ये होतो. म्हणजे पार्लमेंटमधल्या जवळजवळ 90% मेंबर्सनी मला ठाकरेविषयी सांगितलं. सगळ्या मंत्री इतकंच काय, तर आमच्या पार्लमेंटचा संपूर्ण जो स्टाफ आहे, त्या स्टाफने सुद्धा मी आतमध्ये गेल्याबरोबर मला ठाकरे ट्रेलरची रिॲक्शन दिली आहे. संपूर्ण देशात आणि जगामध्ये ट्रेलर पोचला. करेंगे. All right, Hi, we'll have one last question. इमरान, संजय जी एंड आदित्य, मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, हाल ही में जो नसीरुद्दीन शाह ने स्टेटमेंट दिया था उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी. उसके बाद एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई थी आज वो नहीं है उनके पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच या आपके पास कोई ओपिनियन रखने की फ्रीडम या देने की ओपिनियन. क्या आप इमरान इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आपको कभी ऐसा लगता है कि जो आप सोचते हैं आप वो कह नहीं पाते? अभी जो सोच रहा हूँ वो तो मैं कह पा रहा हूँ आपके सामने. आई थिंक देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन आवर कंट्री. और इसके बारे में आई एम बिट इग्नोरेंट, आई एम सॉरी. मुझे पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में पता नहीं है, तो इस पे बात करना आई थिंक इट विल बी अ बिट इररिस्पॉन्सिबल. सो व्हेन आई इन्फॉर्म माई सेल्फ अबाउट इट देन प्रॉब्ली आई कैन इसके बारे में डिटेल में कॉन्वर्सेशन हो सकती है. संजय जी एंड आदित्य, आप लोग. We'll have one last question, ladies and gentlemen. Can I ask that question then? Please go ahead. Mr. Thackeray, also, and Mr. Sanjay Raut, the fact that you're saying कि इस film का, at the end of it, I just want to know because election time आ रहा है, इस film का motive क्या है? क्या political motive है, political gain, या you want to get some, commercial benefit out of it as well? Can both of you answer it, please? मैं सहमत नहीं हूँ आपका जो प्रश्न है. आई एम नॉट एग्री. जब ने फिल्म का जब काम शुरू किया था तब मेरे पास ये इलेक्शन की डेट्स नहीं थी. 1 साल में फिल्म बनानी है और उस वक्त मैंने 23 जनवरी रिलीज डेट मैंने अनाउंस की थी. और जो आप इलेक्शन, और देखिए बाला साहब ठाकरे जी, देश को बताने की ज़रूरत नहीं बाला साहब ठाकरे क्या है. फिल्म तो बनती है. जैसे अभी देखिए बहुत सी फिल्में आती है बायोपिक. पॉलिटिकल मोटिव हमारा अगर होता तो हम और भी काम कुछ कर सकते थे. बाला साहब का विचार, बाला साहब का जो कैरेक्टर है वो आने वाली पीढ़ी जनरेशन के सामने भी आना चाहिए. बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है बाला साहब के बारे में. उनकी शुरुआत कैसी हुई, क्या काम किया है लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए, यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए, देश के लिए. ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अब तक जो नई जनरेशन है उनको मालूम नहीं है. हमने करीब से देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके सामने भी ये काम आना चाहिए. और बाला साहब का पूरा जीवन जो रहा संघर्षमय रहा. जैसे आप फिल्म के पर्दे पे देखते हो ना, एक मसाला स्टोरी रहते हैं, वो सब उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहा है. इसीलिए बाला साहब की पूरी ज़िंदगी एक कहानी है, दंत कथा है मराठी में हम बोले तो सर इससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होने वाला इलेक्शन में? हम ये चीप इंडिया नहीं है. Would you be able to answer that as well? There's nothing planned accidents out here. There's nothing accidental about this movie, but जिनका पूरा जीवन, he stayed away from elections personally. So to think that there's political benefit out of it, I don't think that's the fair thing to think about this. But of course, as an ideology, he was an ideology by himself in terms of what he started off as, right from a kid who couldn't pay his fees in school to making sure that so many people in the state got education, to having a voice which is not just for Maharashtra where we contested elections or contest elections, but across India where we never contested elections. So he went beyond electoral politics, he went beyond politics. So to think that there is any political gain out of it, I don't think it's a fair thing to say. But of course, जो उनकी विचारधारा है, उनकी आइडियोलॉजी है, जो जैसे मैंने कहा कि खुद इंस्पायर होकर खड़ा रहना, कोई इशू लेना हाथ में और फिर कन्विक्शन के साथ आगे जाना, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने करना चाहिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इंडिया. इट्स अ मेक और ब्रेक ईयर फॉर इंडिया. And it's not just about politics, but as a conviction, that you should hold about India and what the future lies, is very important for young girls and boys to think how you can take your own life and your country ahead. I think that's well said. आगे पीछे डेट करके आप बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं.
चीट इंडिया को भी जस्टिस मिलेगा, इससे आपको भी जस्टिस मिलेगा और दोनों का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा करेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको नाइट लाइफ प्रमोशन के लिए जाना जाता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग रात में भी मूवीज देखने जा सकें और इससे वही फ्रेटर्निटी को फायदा होगा? ये कहाँ अटका हुआ है मामला? बिल्कुल वही तो प्रपोजल था मेरा कि जैसे मूवीज़ हो या फिर मॉल्स और मिल कंपाउंड्स है, तो वहाँ के जो स्पाज हो, शॉप्स हो, जिम्स हो, थिएटर्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कैफ़ेज़ हो, वही तो हम चाहते थे कि वो 24 आवर्स खुले रहे, ताकि अगर कोई रात को जाके मूवी देखना चाहता है अपनी फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, घर पे जाके, जैसे हम सब लोग यहाँ जो है, आपका भी कोई टाइम का अता पता नहीं रहता ना, हमारा रहता है, कोई भी कुछ भी हुआ तो हमें भागना पड़ता है, वहाँ एड्रेस करना पड़ता है। तो यही सारे इश्यूज़ को लेके मैंने वो प्रपोजल लाया है। होपफुली अटका अभी तो CMO की सिग्नेचर बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले ये दो चीज़ें होने के बाद हो जाएगी। I think that's well put. दो तो अभी इन्होंने ही कहा है, माल्या और मोदी, नीरव मोदी। दो अभी ख्याल में आ रहे हैं, तीसरा राकेश सिंह है हमारा, तो सॉरी Who, me? Orator? No. I can't give speeches. I actually just try to have conversations with people. Like, I don't think I would like to compare myself to him because he was a much bigger personality. It would be not fair on either of us, and to think that I can be like him one day wouldn't do justice. Of course, my job would be to, whatever he's created, take it 2 steps further than that. But for me to try to emulate such a personality is not the right thing to do. I think he would also prefer me to be myself and be in the skin I'm comfortable in. On that note, I'd like to thank all of y'all. ये फिल्म आ रही है कोई नहीं? So I'd just like to say thank you for all the dignitaries for coming here, and thank you for giving us your time. I'd like to invite on stage, very importantly, Mr. Vinod Bhanushali, Mr. Shiv Chanana, and Mr. Anil Thadani. Please come on stage, sir. काशीमधून तुम्ही परत आंदोलनाला सुरुवात करताय, काशीमधून तुम्ही पुन्हा एकदा राम मंदिराच्या आंदोलनाला सुरुवात करताय, तर तुमची कमेंट काय? आज तुमची बातमी आलेली आहे की तुम्ही 20 फेब्रुवारीच्या आधी जाणार आहात. एक बातमी आज बातमी सर कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया है शिवसेना का जो भाई कौन है मेरे से कहीं ना कहीं बैकअप प्लान है, अगर 9 लाइन जाते हैं तो फिर बात बनती नजर नहीं आ रही है। कि शिवसेना ने रेजोल्यूशन पास किया, क्या पास किया आपको मालूम है? वो रेजोल्यूशन शिवसेना का कायम है, निर्णय लेने का पूरा अधिकार शिवसेना ठाकरे जी को है। हम लड़ने वाले लोग, भागने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है और बालासाहेब ठाकरे जी का है। बीजेपी ने जो पीछे कहा है, क्या उसमें कोई शिवसेना निर्णय लेगी सर इस मुद्दे पर? बीजेपी ने जो अभी कहा है, क्या बीजेपी ने नहीं कहा है? जब पार्टी के अध्यक्ष सामने आकर बोलेंगे तब हम जवाब देंगे। सर वो तो प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे बकायदा कह दिया, हमारी भी तैयारी जोर से चल रही है। चुनाव लड़ने की तैयारी हमेशा होती है। अकेले क्या शिवसेना अकेला लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। शुरुआत करना रहा